So the topic was going on 11.3 asymptotes. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So here I told you what is asymptotes. A straight line which touch a curve at infinity. Okay. So you have, suppose if you have the hyperbola, then after solving it, yesterday we got the equation of asymptotes x upon a plus y upon b is equal to 0. This is a line, and similarly x upon a minus y upon b is equal to 0. So hyperbola will be having two asymptotes. So this is a line. This is what? This is a line passing through origin. Yeah. So if you have a hyperbola like this in general, so you will be having two asymptotes. Means two lines you can find which will be touching the curves at infinity passing through the origin for this general hyperbola like this. So one equation will be this and another equation will be like this. So it will be touching these hyperbolas at infinity. Or if you have a rectangular hyperbola xy is equal to c, so for this rectangular hyperbola, the coordinate axis will be the asymptotes. Right? These coordinate axes, they will be the asymptotes for this rectangular hyperbola. So this is the equation of asymptotes for a general hyperbola. Okay. So अगर rectangular hyperbola इस form का है for the X square minus y square is equal to a square. जी. It is a particular hyperbola when your coordinate axes are the asymptotes. Then I represent by this. xy is equal to c or xy is equal to c square, constant के square ले लो. Or in general for the rectangular hyperbola, x square So a minus is equal to b. ये है ना, ये इक्वेशन आती है इसकी x square minus y square is equal to a square. इसके लिए इक्वेशन क्या आएंगे आपके पास? X square minus y square is equal to a square. हाँ, इससे निकाल सकते हो. देखो इसको तो यहाँ पे a की वैल्यू b के बराबर होती जी है. जी यस यस. तो आपको जनरल उससे आइडिया लग जाएगा. The asymptotes are x is equal to plus minus y, है ना? इसी से अपने निकालते हैं. a को b के इक्वल रख दीजिए, x equal to minus y is plus y. So the asymptotes basically are what? Asymptotes of a hyperbola. तो asymptotes जब भी होंगे हमेशा ध्यान रखो पेयर में होंगे ना. The asymptotes are always in a pair for the hyperbola. So the asymptotes of a hyperbola are the pair of tangents. Pair of tangents drawn from the center. Drawn
from its center. From its center. चाहे कैसा भी hyperbola हो, आपका जनरल हो, rectangular हो, it will be a pair of tangents drawn from the center. Then we have next definition, the conjugate hyperbola. 11.4 article, the conjugate hyperbola. 11.4, yes. सर 1 मिनट बैक स्लाइड कीजिएगा. Okay. ओके सर. The conjugate. आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका क्या, स्लाइड्स का? नो सर, वो लिख रहा था, लास्ट वाला स्टेप छूट गया था. The conjugate hyperbola. Definition is simple. What is the conjugate hyperbola? Suppose you have one hyperbola. Conjugate hyperbola का मतलब समझ में आ रहा होगा कि you have a hyperbola with respect to the another hyperbola. So suppose one hyperbola is given to you like this, and it has, you know, two axes. This is your transverse axis, and this is your conjugate axis. So the hyperbola whose now if I have a hyperbola whose which has transverse and conjugate axis, so a new hyperbola like this, ऐसे. तो इस हाइपरबोला में अगर आप देखें तो व्हाट विल बी हैपनिंग कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस थी फ्रॉम द ओल्ड हाइपरबोला है ना, इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस तो बन जाएगी फॉर दिस ग्रीन ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना. दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस व्हिच इज क्रॉसिंग ए सेंटर है. तो जो कॉन्जुगेट एक्सिस थी फॉर द गिवन हाइपरबोला, सपोज वन हाइपरबोला वाज गिवन टू यू, सो अ न्यू हाइपरबोला whose transverse axis is the conjugate axis of the given hyperbola and whose transverse axis, ये transverse axis है इसकी given hyperbola की, है ना. ये क्या बन जाएगी? This is the conjugate axis for this green color hyperbola. This is conjugate axis. Okay? तो अगर ये रेड कलर हाइपरबोला आपका 1 है, तो जो ये 2 नंबर 2 है, it will called a conjugate hyperbola. समझ में आई बात? The hyperbola whose transverse and conjugate axis are the conjugate and transverse axis of a given hyperbola. Is called a conjugate hyperbola. Okay. So here in that case, this green color hyperbola is the conjugate hyperbola to this red color hyperbola. Is it clear? No. यस सर.
ठीक है, तो जब भी आपको एक हाइपरबोला गिवन हो, तो whenever you will be having hyperbola, you will be having a transverse axis and you will be having a conjugate axis. To construct a hyperbola such that the transverse axis of the new hyperbola is the conjugate axis of the given hyperbola, old hyperbola, है ना, and the transverse axis in the conjugate axis will be the transverse axis of the given hyperbola. Means simply just change the role of the transverse and conjugate axis for the new hyperbola. उनके रोल इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जब रोल इंटरचेंज हो गए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखना चाहूं तो फॉर द हाइपरबोला, suppose this was the hyperbola, this was your red color, this ये जो रेड कलर वाला है, this is your red color, अगर मैं जो रेड वाला प्लॉट किया, फॉर द हाइपरबोला the conjugate hyperbola is सिर्फ क्या होगा, माइनस साइन का फर्क हो जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, या अगर आप माइनस लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So it will be the equation of conjugate hyperbola simply. And easy to remember. Clear? What we Yes, did sir. है, हमने क्या करा एक तरीके से, you can say कि you just rotated your picture to कितना, इसे रोटेट कर दिया हमने 90 डिग्री, है ना। If you want to get a conjugate hyperbola क्या करें, जो आपके पास ये फिगर थी इसको रोटेट कर दो बस, तो जो आपके पास विद रेस्पेक्ट टू एक्स था ये वाई के वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट चला गया, सेंटर अब भी सेम रहेगा। So this is the equation of this, and now here, तो अगर ये इक्वेशन सपोज 1 है हाइपरबोला की, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज 2। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो क्या आएगा आपके पास, देखिए जरा, अगर मैं 2 - 1 करता हूं सपोज, या 1 - 2 करते हैं, व्हाट अबाउट 1 - 2, 1 - 2, दैट मीन्स सर 0 है। 0 नहीं आना चाहिए यार, देखते हैं 0 आ रहा है, लेफ्ट का लेफ्ट में करा, the differ by a constant, नहीं ऐड करो इसे, यहाँ माइनस में तो 0 हो जाएगा, ऐड करो, अगर ऐड करके देखें Yes. जरा तो क्या रहा देखना, अगर मैं ऐड करूं प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, और इधर तो 0 हो जाएगा आई थिंक, 1 + -1 है ना, लेफ्ट हैंड साइड Yes, तो sir. 0 है। अब ये कितना हो गया, टर्म्स ऐड हो गए, 2x और माइनस, b है ना, ये आ गया। सो दैट मीन्स व्हाट, और यू कैन से, तो ये क्या आ रहा है कि सम ऑफ, तो दैट मीन्स ये क्या था, ये आपके पास क्या थी, दिस इज एसिम्पटोट्स, ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स था ना, इक्वेशन ऑफ पेयर सर ऑफ ये तो एसिम्पटोट्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर। है। सर ऐड करने पे भी तो कैंसिल, ऐड करने पे y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं अरे सर। दोनों माइनस के है ना, कैंसिल ओके क्यों सर। होगा, उधर -1 लिया ना मैंने, तभी तो 0 लिखा है, एक साइड में 1 था और एक -1 था, तो ये 0 हो गया। ओके, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना, आई एम एडिंग, क्लियर, ओके सर। यस। So what is this? This is equation of pair of asymptotes. ये क्या है?
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0, x अपॉन a माइनस, इसे क्या लिखोगे आप, ये लिख सकते हो ना, ट्वाइस, अगर मैं 2 को लिख रहा हूँ ऐसे ही, है ना। सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola. This equal to twice equation of pair of asymptotes. ठीक है, ये एक रिजल्ट, इसका इस्तेमाल करके हम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं, इसी पैराबोला सकता है ना। इससे ही वन ऑफ द वेज, इफ यू नो हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो ना। एक तरीका तो ये है कि आप उसको लिखेंगे इस तरीके से, या डायरेक्ट, इफ यू नो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यू नो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट, अगर हाइपरबोला इक्वेशन पता है आपको तो कॉन्जुगेट की पता चल जाएगी, और अगर कॉन्जुगेट की पता है तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। ओके, से एक प्रॉब्लम है आपकी एग्जाम्पल 1, देखिए पेज 211 पर है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द asymptotes of the hyperbola क्या हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर प्लस जनरल हाइपरबोला गिवन आपको, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में गिवन है ना। या कंडीशन आप चेक करेंगे तो इट विल सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ अ हाइपरबोला, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ab होना चाहिए, आई थिंक। So find the asymptotes of this hyperbola and the equation of the conjugate. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या निकल सकती है, तो एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या है आपके पास, डिफर बाय अ कांस्टेंट, है ना। एक चीज और थी यहाँ से, अगर आप देखें एक चीज और, अब एक तो ये रिलेशन थी, एक चीज और है कि अगर आप यहाँ देखें इक्वेशन नंबर दिस, है ना, ये आपके पास थी। सो इक्वेशन 1, है ना, और आपके पास इक्वेशन ये जो आई एसिम्पटोट्स की, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज एसिम्पटोट्स। हाँ, एक चीज में और रह गई, यहाँ कर देता हूँ, चलो, दिस इज योर एसिम्पटोट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इज द एसिम्पटोट्स। और हाइपरबोलास क्या थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका कॉन्जुगेट था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। So if you see here that this 1 and 2, अगर ये एसिम्पटोट ले लूं मैं, है ना, ये एसिम्पटोट है आपके पास और ये, तो 1 and 2 आर डिफर बाय अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के तो फर्क है, देखिए 0 और 1, है ना, तो 1 and 2 आर डिफर बाय अ कांस्टेंट, बाकी तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट का फर्क है, यहाँ 0 है, यहाँ पर है ना। और सेम सिमिलरली कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी है, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस तो 1 ही आएगा ना, 0 और -1 है, डिफरेंस स्टिल 1, डिफरेंस, एंड यू कैन सी इक्वेशन
1 and 3, they are also differ by a same constant. है ना, ये से आप ऐसे, चाहे तो मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन में ये बात लिखते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर आपको अगर एसिम्प्टोट निकालना है इसका और हाइपरबोला गिवन है, तो क्या होगा, एसिम्प्टोट इसका डिफर बाय अ कांस्टेंट, सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा, है ना। विजिबल यहाँ से इट इज ऑब्वियस। सो क्या कर लें, लेट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, लेट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स बी, क्या मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस, बोलिए, सम कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इक्वेशन एसिम्प्टोट्स क्या होगी, दिस। समझ में आई बात, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। जब मैंने ये हाइपरबोला लिया था तो क्या था, कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा था। तो अगर आप जनरल लेंगे तो उसमें भी एसिम्प्टोट्स में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा। ओके, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या निकालना है, इफ आई विल फाइंड लैम्डा टू गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब ये जो एसिम्प्टोट्स है ये क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एसिम्प्टोट्स क्या है, दे आर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो सिंस 4 represents a pair of straight lines, क्या होगा बताइए, इसी कंडीशन से आपको ये लैम्डा निकलेगा। क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए, अभी कल ही बताया था। क्यों भाई, एनीवन, when a conic, general equation of conic represents a pair of straight lines, delta is equal to 0। तो डेल्टा क्या है ये तो बता दीजिए, व्हाट इज डेल्टा। यस सर, ए बी सी आएगा डायगोनल में। और सर एच जी एफ, एच जी रो, एच जी कॉलम, एफ है, ये आपका होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट, ये बात समझ आई, मैंने जो लिखा है यहाँ पे नहीं समझ में आया, एकदम खामोश हो गए आप सब लोग। सर ऊपर में सर आपने लिखा है कि वो कांस्टेंट से डिफरेंशिएट, ये डिफर होगा, डिफर बाय सम कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि दिख रहा है ना, यहाँ ऑब्वियस पर है यहाँ आपने से। ये, यस सर, तो वो तो समझ में आ गया, लेकिन डेल्टा यहाँ पर ऐड करने का मतलब ये डेल्टा नहीं, लैम्डा लेमडा ये। ऐड करना। हाँ, क्योंकि लेमडा सर, यस सर, ये आपके पास क्या है, ये हाइपरबोला है, दिस इज द हाइपरबोला। यस। तो इसका एसिम्प्टोट क्या बताया मैंने, कि एसिम्प्टोट जो है वो डिफर करेगा हाइपरबोला से बाय अ कांस्टेंट। 1 एसिम्प्टोट है और 2 आपके पास हाइपरबोला था। तो यहाँ पर अगर ये एसिम्प्टोट हाइपरबोला है तो जो एसिम्प्टोट होगा उसमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। तो मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया यहाँ पे प्लस लैम्डा, ओके सर, क्योंकि डिफरेंस जब आप करेंगे, अब आप यहाँ पर 4 माइनस दिस इक्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म तो सेम है। अगर आपको हाइपरबोला पता है और एसिम्प्टोट निकालना है तो सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा, वो कांस्टेंट हमने लैम्डा मान लिया। अब ये लैम्डा कैसे निकलेगा, बाय दिस कंडीशन, बिकॉज वी नो कि इफ इट रिप्रेजेंट्स एसिम्प्टोट्स तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी मैंने आपको बताया कि एसिम्प्टोट्स क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी। अब तो समझ में आ गई बात, अब भी यस नहीं आई यस तो सर, बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी ए एच जी क्या है आपका, देख लीजिए। यहाँ पर आप ए एच जी लिख सकते हैं, A1 हो गया है ना, इससे कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया हमने। तो यू हैव 1 3/2, h क्या होता है 2hxy, तो 3/2 एंड 1, दिस इज आल्सो 3/2, 1 और BC, तो BC, C कितना था यहाँ पे देखिए, C लैम्डा है कांस्टेंट, A B C ये लैम्डा हो गया।
3/2 and 3/2 ये है, दिस शुड इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 3/3 की डिटरमिनेंट है, तो सिंपली सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सो हेंस द asymptote is, ये asymptotes आर पेयर में आते हैं, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका asymptote हो जाएगा इसका। ठीक है, जब कॉन्जुगेट का क्या होगा, उसके आगे एक लाइन और है, एक एक्सरसाइज और, एंड इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कोई बता सकता है? बताइए सर -1, क्या होगा सर आपका -1 equation? हो जाएगा। इसे देखो जरा, अभी एडिशन लिखी थी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू ट्वाइस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना? तो आपको ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल सकते हैं ना। इक्वेशन में क्या होता है, इफ यू नो टू थिंग्स यू कैन फाइंड द अदर थर्ड यस थिंग। सर, अदर तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो गई, इक्वेशन ट्वाइस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स माइनस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन ऑफ तो ट्वाइस यानी कि इसका ट्वाइस करो आप और माइनस कर दो इसे, तो क्या आएगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ 2 आ जाएगा। ये क्या करेंगे आप, इसका ट्वाइस करेंगे, है ना? तो इसका ट्वाइस कर दो। अगर ये आपके पास इक्वेशन है, सपोज इसे मैं बी कह देता हूँ और इसे ए, कैपिटल ए, तो क्या करना है आपको, ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, है ना? ये क्या है आपके पास, ये आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला दे देगा। अभी जो मैंने रिलेशन लिखी थी सम की, तो ट्वाइस करिए इसका, ए माइनस करेंगे तो इसका ट्वाइस क्या करोगे, +2 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ए करेंगे तो ये एक चीज लेस हो गई, यहाँ कांस्टेंट तो कोई था ही नहीं, तो क्या बचेगा, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दे आर आल्सो डिफर बाय a constant। क्लियर है बात नहीं? सर, जब इक्वेशन का ट्वाइस करेंगे तो सब टर्म में 2 से गुना करेंगे। हाँ, तो सबको 2 से गुणा करो और फिर माइनस ए करोगे, तो ए क्या है, ये सब माइनस नहीं होगा एक एक बार, यस सर। तो एक ही बार तो बचेगा, सिर्फ एक ही बार तो बचेगा। और यहाँ +2 है कांस्टेंट, 2 माइनस कुछ भी नहीं है, यहाँ कांस्टेंट 0 है, तो 2 2 एज इट इज रहेगा। समझ गए? यस सर। भाई 2 से गुणा करके माइनस ए भी तो कर रहे हो, ए का मतलब ये यस क्लियर। 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस ए का ए में कितना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, जैसे तो क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा, ये आ गया, ऐसे ही सारे टर्म्स के साथ होगा। ठीक है, चलिए। यस सर, क्लियर। हाँ, तो ये आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट था, तो इसमें ज्यादा बड़ा वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप जनरल भी निकाल सकते हैं, वी शैल फाइंड द जनरल, इससे अगर हम रिलेशन निकालें, वो आर्टिकल आपका आगे है लेकिन इससे रिलेटेड है, तो बीच ही में डिस्कस कर दिया गया है। ये है तो आपका पेज 235 पे, लेकिन इसे यहाँ डिस्कस कर दिया है बीच में ही, क्योंकि ये रिलेटेड है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ asymptotes for the general equation of second degree। ax square plus 2hxy plus by square
प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमने अभी देखा यहाँ पर कि, तो अगर इसे 1 लिख दूं मैं, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगी, डिफर बाय अ कांस्टेंट, है ना। देन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स विल बी, बस लैम्डा का फर्क हो जाएगा। प्लस सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, है ना। मैंने जनरल इक्वेशन ले लिया, यहाँ पर सी भी आपके पास कुछ है, तो क्या फर्क होता, सिर्फ लैम्डा का डिफरेंस होगा, सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पर क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बिकॉज एसिम्पटोट्स, यहाँ पे हमने लैम्डा ऐसे चूज किया है, वेयर लैम्डा इज सो चूजन दैट दिस इक्वेशन 2 represents a pair of straight lines. Straight lines. So delta must be, या डेल्टा डैश लिख दे रहा हूँ, मस्ट बी 0, क्योंकि डेल्टा हम यूज करते हैं 1 के लिए। अब 2 जो है लैम्डा ऐड हो गया तो डेल्टा डैश लिख दो, तो डेल्टा डैश का मतलब क्या हो गया, ए एच जी बी एफ एफ, और यहाँ सी प्लस लैम्डा आ जाएगा बस, आप तो पहले ही लिखे हैं। क्यों भाई। यस सर। हाँ, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, थोड़ा सा इसे और मैं इजी कर सकता हूँ। दिया के बाद कहा सर, तो मैं ए एच जी एच बी एफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ अपने, जी एफ सी एंड प्लस, क्योंकि प्लस लैम्डा हो रहा है तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एच 0, इसी को कॉलम को ऐड कर, एच बी 0 जी एफ लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। 0 0 लैम्डा कॉलम ऐड किया, ये तो हुआ था, सी प्लस लैम्डा था, ठीक है। और ये कितना हो गया आपके पास, फर्स्ट डिटरमिनेंट इज व्हाट, इट इज डेल्टा, प्लस इसको अगर मैं ओपन करूं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम तो क्या आएगा, सिर्फ थर्ड आएगा, लैम्डा टाइम्स ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, हाउ मच, माइनस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, है ना। यही हमें लैम्डा जो निकालना होता है बस, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपको एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकल आएगी। सो द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन of the asymptotes is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c and minus delta upon, ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो क्या होगा, बताइए, तो क्या होगा। अगर यहाँ पे ये चीज 0 हो गई, ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सर वैल्यूलेस हो जाएगा वो। तो फिर तब तो क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। दिमाग नहीं लगा तो यार तुम लोग, दिमाग तुम लोग बिल्कुल ऐसे बिना यूज किए हुए कुंद हो गए जिसे कहते हैं। मैंने जब बताया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या कंडीशन होती है, नॉट 0, तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, तब डेल्टा चेक करते हैं, समझे। इस सब कंडीशंस आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पढ़ी होंगी। अब आपके पास रीजन होगा, इसका रीजन आप फौरन दे देंगे, सर जब सर पढ़ाते थे तो माइक में आवाज नहीं आती थी, तो हमें समझ में नहीं आया क्या पढ़ा है ना। यस सर, यूनिट 1 तो हम लोग का इसी चक्कर में यही सर यही, पूरा अरे तो ये किताब में होगा। तो पढ़ा होगा, देखा देखते तो होगे कुछ यार।
इस लाइन, इस वाले, इस टॉपिक, इस पॉइंट को मैंने कम से कम अभी तक 10 बार बोल चुका हूँ मैं इस बात को। दोनों यूनिट्स में मैंने इसे कम से कम 10 टाइम्स इस्तेमाल किया है। आप मेरी रिकॉर्डिंग उठा के देखिएगा, जिसमें आपको आवाज भी आ रही है और दिख भी रहा है। लेक्चर के बाद अगर आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तो कभी याद नहीं होगा मैथमेटिक्स, तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं, बैठे बहुत से देख रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो क्या करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। आज का लेक्चर आज ही आपने एक बार गौर से देखा, रिवाइज करा, कुछ अपने आप नोट्स बना लिए तो याद रहेगा और ना भूल जाएगा। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसिम्पटोट्स। अब अगर क्वेश्चन एसिम्पटोट्स है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा बताइए। द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्योंकि आपको अब एसिम्पटोट्स पता चल गया है और हाइपरबोला ऑलरेडी पता था। तभी मैंने जो प्रॉब्लम करी थी तो क्या फर्क आया था, ट्वाइस का डिफरेंस आया था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या यस होगा, सर। द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज, अगर मैं एस डैश से रिप्रेजेंट कर दूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स हो जाएगा बस इसका। ओके, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। फर्क आया ना, अभी हमने देखा था कि क्या आया था, ट्वाइस का फर्क आया था, लैम्डा की वैल्यू निकल आई थी। तो ट्वाइस के फर्क आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एस प्लस एस डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसिम्पटोट्स। एस क्या है आपका, एस ये जो जनरल कोनिक, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, सम ऑफ hyperbola and conjugate hyperbola is equal to twice equation of pair of asymptotes। ये A का मतलब क्या है, equation of pair of asymptotes, asymptotes। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम, अगर हमें 2 थिंग्स मालूम है तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ थर्ड थिंग। अगर ये दोनों पता है तो ए निकाल सकते हो, ए एस पता है तो एस एस। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है इसका। जैसे एक प्रॉब्लम है, आप ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम 3, एग्जाम्पल 1, आपको आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल 1, पेज 236। यहाँ पर कोनिक की इक्वेशन पता है आपको, तो आपको ये निकालना है। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ये आपके होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। यू विल डू इट ऑन योर होम असाइनमेंट। ठीक है।